अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग दिवस की क़यादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग कॉपीराइट और पेटेंट फ्री है। यह हमारी पुरानी सकाफत है, इसकी वजह से दुनिया हिंदुस्तान के साथ आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा प्रोग्राम में कहा कि योगा का मतलब है मुत्तहिद हो जाओ। मुझे याद है कि मैंने यहां 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाने की तजवीज पेश की थी। आलमी योगा दिवस मनाने के लिए हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया इकट्ठा हुई। योगा हिंदुस्तान से आया है, यह हिंदुस्तान की पुरानी सकाफत और कॉपीराइट से आजाद है। Your Excellency Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammad, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक़्क़िद होने वाले योग प्रोग्राम ने भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए इस प्रोग्राम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। इस योगा सेशन में बेशतर कौमें शामिल थीं, यानी तकरीबन हर कौम का एक फर्द या नुमाइंदा शामिल था। Well, today was very unique in that Prime Minister Modi led us in doing yoga at the United Nations. You would all recall that in December 2014, it was under the Prime Minister's leadership and guidance that 21st June was inscribed as International Yoga Day, and therefore today it was a matter of deep honor for us and for the United Nations that the Prime Minister led us in doing yoga. And I'm also very happy to say that a record was also set. The maximum number of yoga participants in one place took place today at the United Nations. 191 countries had registered, and well, the Guinness gave us this certificate, which signifies that the maximum number of countries participated at the Yoga Day held in the United Nations on 21st June 2023. Thank you.
आगे बढ़ेंगे। आईआरपी 11वीं बटालियन अनंतनाग पुलिस और आयुष के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग में योगा के हवाले से तकरीबात का एहतमाम हुआ। तकरीब में डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, एसएसपी अनंतनाग आशीष मिश्रा, कमांडेंट संदीप मेहता समेत दीगर मुताल्लिकीन ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों के 300 शुरका और तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर जहनी तनाव और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए योग को बेहतरीन जरिया करार दिया गया। On this occasion, I would just like to request everybody to, eradicate stress, depression, lifestyle problems that we are all facing. We should definitely keep this energy high. Definitely, nowadays a lot of exercises are coming up, gymming is coming up, running is coming up, all acrobats is coming up, but we should not forget the essence that yoga provides us. It is the basic breathing, basic how you sit, how you stand, how you do the poses. This is what matters in your posture, in your stress levels, in a depression. So some 10-15 minutes of yoga every day would do wonders for you. मारूफ मौलिज मुसन्निफ और समाजी कारकुन डॉक्टर निसार अहमद भट्ट की तहरीर करदा किताब ऐन एतराल का अंग्रेजी तर्जुमा इखलास वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान अंजाम दिया गया, जिसमें वादी कश्मीर के मारूफ शख्सियात, कलमकार और सहाफ़ियों के साथ साथ जिंदगी के मुख्तलिफ तबक़े हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी जस्टिस बशीर अहमद किरमानी थे और साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर गुलाम रसूल सूफी ने मजलिस की सदारत की। तकरीब में मारूफ मुसन्निफ और कॉलम निगार ZG मोहम्मद और साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक कल्लू मेहमान ज़िवकार के तौर पर शरीक रहे। किताब में इलाक़े तराल से मुतालिक कदीम कुतुब तारीख में दर्ज अहम तारीख़ी मालूमात का खुलासा शामिल किया गया है। आज जो किताब रिलीज हुई उसका नाम है त्राल, द लैंड लीजेंड्स एंड लैंडमार्क्स। ये असल में आईने त्राल, जो त्राल पर 1400 साल तारीख लिखी गई है, ये मुकम्मल और मुदम्मल किताब है तारीखी एतबार से। इसमें 6वीं सदी ईस्वी से 2020 तक जितने भी डाटा है त्राल के मुताबिक वो सारा कलमबंद किया गया है। पुलिस स्टेशन पंपोर में सिविल सोसाइटी, फलाह बहबूद कमेटी और मौजूद शख्सियात ने SDPO पंपोर में मीर मुमताज़ के इम्तियाज़ के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें SDPO की हौसला अफजाई की गई और उनके कामों को सराहा गया। मीर इम्तियाज़ पिछले 5 वर्षों से पामपुर में बतौर SDPO तैनात रहे और अब इनका यहां से तबादला हो गया है। लोगों ने बताया कि इन 5 सालों में SDPO ने मुख्तलिफ जराइम को रोकने में अपना कलीदी रोल निभाया है। खासकर मंशियात के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त काम किया, जिस पर मकामी लोगों ने इन्हें एजाज से नवाजा। SDPO ट्रांसफर बड़ हमदर्दी लकटन बड़न बुजुर्गन बड़ ईमानदारी सान दिल सान बोजान। तुहद सठा शुक्रगुजार कि अम कोर प्रथ कह जराइम ड्रग बाकी तथ पे कोर कंट्रोल या कुछ जाए गई कुछ किस्म मर्डर केस गो कह सह कोर एज रेवजो पे राव सुनकस वार कर बेस जाए पोस्टिंग कर। श्रीनगर की मज़ाफ़ात में वाक़े हमदान रेजिडेंसी दोमिल में अंदरूनी सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम इंतहाई खस्ता है। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमदान रेजिडेंसी के लोगों का कहना है कि अगरचे ये इलाका जिला श्रीनगर के साथ मुंसलिक है, ताहम इसके बावजूद इंतजामिया यहाँ के दरपेश मसाइल और मुश्किलात से नावाकिफ है। लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर और जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि आज तक दफ्तर के चक्कर काटे, लेकिन सिवाय यकीन दहानी के कोई काम नहीं हुआ। हमदान रेजिडेंसी में सड़कों से उठने वाले गर्दो गुबार से बच्चों और बुजुर्गों में मुख्तलिफ बीमारी लाहक हो गई हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि हमदान रेजिडेंसी की सड़कों पर मैकडम बिछाया जाए और ड्रेनेज सिस्टम को भी तामीर किया जाए। हमदान रेजिडेंसी दुमेल चौक सोजेट गोरीपोरा श्रीनगर का रहने वाला हूँ। इस कॉलोनी में तकरीबन 4 साल से हम मैकडेमाइजेशन और ड्रेनेज के लिए लड़ रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंटों में
हमने एप्लीकेशन डाली है, सबने कहा हम 1 साल में प्लान में रखेंगे, दूसरे ने कहा नॉन प्लान में रखेंगे, किसी और फंड्स आएंगे वो उसमें देंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने इसमें कोई तवज्जो नहीं दी। अब हम आपके जरिए एलजी मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह हमारी तरह भी तवज्जो दें। मैं एलजी साहब से मुदबाना अपील करता हूं अपनी कॉलोनी वालों की तरफ से कि आप एक बार यहाँ तवज्जो दीजिए, यहाँ की ड्रेनेज देखें, यहाँ का रोड देखें, पूरा का पूरा खराब है। चलना तो दूर की बात है, सांस लेना दुश्वार है। हमारे बच्चे जब निकलते हैं शाम को बीमार पड़ते हैं इस धूल की वजह से, रोड की वजह से। ड्रेनेज इतना गंदा, इतनी बदबू आती है, कोई भी हमें तवज्जो नहीं देता है। एलजी मनोज सिन्हा ने जैगली सेंटर रंगरेड बडगाम में एनसीसी इंटीग्रेशन कैंप का दौरा किया। एलजी के साथ डीसी बडगाम अक्षय लाबरू, जीओसी कोर कमांडर एसएसपी श्रीनगर और दीगर एहलकार भी थे। एलजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एलजी ने एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत की जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं और इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का मकसद कैडेट्स को मुल्क की सकाफती तनव्वुर का तजुर्बा कराना है। एलजी मनोज सिन्हा ने कैडेट्स को योगा डे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां से नौजवान मुस्तफीद होते हैं। एनसीसी कैडेट्स मुल्क की भरपूर सकाफत का तजुर्बा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एनसीसी कैडेट्स हमेशा हम आहंगी के लिए खड़े रहे। एलजी ने कहा कि नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और वो कुछ अच्छी और जदीद तकनीकी तजवीज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मुख्तलिफ मशवरे वसूल होते हैं। हाल ही में मुनक्किदा G20 का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों ने इन्हें लिखा था कि ये तकरीब यहाँ के सयाहत के लिए किस तरह फायदेमंद होगी। और मैं मानता हूं राष्ट्र के निर्माण के एकमात्र संकल्प के साथ एनसीसी की 75 वर्ष की अमृत यात्रा ने देश के नौजवानों को कैरेक्टर बिल्डिंग, टीम वर्क तथा समाज के अन्य वर्गों को संकीर्णता से ऊपर उठाकर देश हित के एकमात्र लक्ष्य सबका साथ सबका विकास के लिए प्रेरित किया है। नेतृत्व, कर्तव्य, साहस और सेवा जैसे मूल्यों के साथ हर एक कैडेट पारंपरिक तौर पर पिछले 7 दशकों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का बड़ा माध्यम भी बना हुआ है। मुझे व्यक्तिगत रूप से गर्व की अनुभूति होती है जब मैं देख पाता हूं कि हमारे राष्ट्र की बागडोर ऐसे युवाओं के हाथ में है जो अनुकरणीय साहस, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों तथा एकता की भावना से शक्तिशाली भारत की नींव रख रहे हैं। युवा साथियों, एक बात अवश्य याद रखिएगा, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण अतीत की मजबूत नींव पर ही संभव होता है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोनल कमेटी और सूबाई कमेटी की मीटिंग टनमर के द्रंग में उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई। उमर अब्दुल्ला ने एलजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एलजी हुकूमत ऐसे फैसले लेती है जिससे अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने G20 पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस काम के लिए करोड़ों रुपये ज़ाय किए गए, इसमें एक दिन जरूर कमीशन बिठाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 पार्लिमानी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है, लेकिन बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसीज और पार्टी के दरमियान तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने पार्लिमानी और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के लिए तैयार रहने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राब्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है। इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो। हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोषा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर। दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए, किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हो रहे, हम भी कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक है। माहौल बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी साजगार है। मुमकिन है कि माहौल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी साजगार होगा, लेकिन माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। और क्योंकि माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को खुद भी पता है कि आज के दिन में अगर इलेक्शन किए गए तो शायद वो 10 सीट से ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जीतेंगे। हिंदुस्तान में कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वहां पे आ जाके रुक जाती है जहां से जम्मू कश्मीर का इलाका जो है शुरू हो जाता है। अगर आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही हैं तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के भी कराओ, हमें भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, लेकिन कराने की हिम्मत नहीं है इनकी। और तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। तंजीम को मजबूत करने को, साथियों से बातचीत करने का मौका, उनसे सुनने का मौका, खासकर मौजूदा हालात को लेके, और कुछ अपनी बातें उनके सामने रखने का मुझे मौका मिला। मकसद तो ये सिलसिला तो जारी रहता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। योगा डे पूरे जिला करगिल में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम बेमथंग करगिल में मुनक्किद हुई। तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ LAHDC करगिल मोहसिन अली और डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेवे ने बेमथंग में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों ने योगा सेशन में हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा इवेंट यहाँ पे रखा था, जिसमें स्कूल के बच्चे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, हमारे आर्मी के जवान हो, और भी बाकी आवाम पब्लिक से लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया।
ऑलमोस्ट 600-700 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे से यहाँ पे फंक्शन हुआ है। योगा जो है फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में, जिसमें बच्चे नॉर्मल लोग भी, काम करने वाले एम्प्लॉयज़, सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, वो बाकी कंटेंट की वजह से। तो ऐसी चीज़ों में हमारे माइंड को पीसफुल रखना, एक बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और योगा उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। तो मेरी तो हमारे आवाम से अपील रहेगी कि इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाए, क्योंकि वैसे भी हम जो है थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते ही हर कोई करता है, स्ट्रेचिंग हो, बाकी सारी चीज़ें हो, वॉकिंग है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा कश्मीरियों के लिए अपने भाईचारे और मेहमान नवाजी की रिवायत को साबित करने का सुनहरी मौका है। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम और सोनमर्ग के पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि वो यात्रा में मुकम्मल तौर पर शिरकत करें और यात्रियों की हर मुमकिन मदद करें। मीडिया से बात करते हुए महबूबा का कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क का बाकी हिस्सा फिरका वाराना मुनाफरत की जद में है, ऐसे में कश्मीरी अवाम को भाईचारे का सबूत देना चाहिए। याद रहे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग पहुंचकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी थी और पीडीपी के बानी और साबिक में वज़ीर आला रह चुके मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की तारीफ भी की थी। उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, जैसे उत्तराखंड में। रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने डाक बंगला मेढर में बीजेपी कारकुनों की मीटिंग की। इस मौके पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का मुशाहिदा किया जा सकता है। खटाना ने कहा कि खानदानी जमातों ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों से आम आदमी को बेवकूफ बनाया और रियासत के कीमती वसाइल को लूटा, लेकिन अब शफाफियत मौजूदा निजाम की पहचान बन गई है। हम कभी भी राजनीति नहीं करते, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारे लिए कम्युनिटी है, अगर उसकी समाजी बैकवर्डनेस है उसको हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी का रिजर्वेशन हो वो भी इंस्टॉल करा था, उसके लिए हमेशा नेगेटिव व्यू रखा है। और पहाड़ी के लिए भी इनको लैंग्वेज या इनको प्रॉपर इनकी जो फाइल थी उसको प्रोसेस नहीं करा था, और कभी गुजर के हाथ पीठ पे हाथ रखा तो एमएलए बना लिया, कभी पहाड़ी पे रखा। हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं और कश्मीर के लोग जो हैं ये सिरकताज है। वज़ीर दाखिला अमित शाह 23 जून से श्रीनगर कश्मीर में मुनक्किद होने वाले अज़ीमुश्शान सकाफती मेले वितास्ता फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा फेस्टिवल में तकरीबन 2000 फनकार शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम श्रीनगर में डल झील के किनारे SKICC लॉन में मुनक्किद किया जाएगा। साढ़े 1800 कलाकार सिर्फ जम्मू और कश्मीर के हैं। इसमें हमारी जितनी भी आर्ट फॉर्म है, चाहे वो हमारा बच नगमा है, चाहे हमारा भांट पाथर है, चाहे हमारी दास्तान है, चाहे हमारे सूफ़ी गायन है, चाहे हमारी छकरी है, कुरूफ है, हमारा डोगरी है, कुड है, और जितने भी मतलब आर्ट फॉर्म है, मैं किस किस का नाम लूँ, हर आर्ट फॉर्म हमने कोशिश की है कि इसमें कवर हो। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है वितास्ता, ये होम मिनिस्टर साहब ने ही दिया है देश को, उनके डायरेक्शन में ही हुआ है और संस्कृति मंत्रालय को कहा गया है। ऑब्वियसली जब उनका फेस्टिवल है तो बिल्कुल आएंगे, है ना, जैसा अभी क्योंकि सारी बातें सरकार लेवल पे होती हैं और इसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे। तमिलनाडु हमारी जो है पेयरिंग स्टेट है कश्मीर की, तो वहाँ के गवर्नर भी आएंगे और गवर्नर पंजाब जो हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चेयरमैन हैं वो भी आएंगे। इस मंच को तो मैं वैसे आर्टिस्ट मैं इस मंच को देखता हूँ कि देखिए, मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ यहाँ कोरियोग्राफर है, बाकी चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। मैं कहता हूँ यहाँ के जितने भी हमारे भगत भाई जो है, चाहे दंबाली हो या आर्टिस्ट जितने भी है भगत वाले जो हैं, उनका भी अलग एक फोक ढंग है। यहाँ गोजरी है, पहाड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने सबको बुला के लाया है यहाँ, और अच्छी बात है और खुशी की बात है। मैं कहता हूँ कि दिन ब दिन डे बडे तरक्की है, और मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि तरक्की बहुत सहा हम लोगों ने, अब तरक्की की राह हम देखते हैं। ये एक सौभाग्य मिला है मेरे को कि NZCC के द्वारा कि मैं इस खूबसूरत प्रस्तुति को कोरियोग्राफ करूँ, जिसमें 6 अलग अलग ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर के,
और 150 कलाकार से ऊपर कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे कश्मीर की सुंदरता को हम इस एक मंच पर लेके आ रहे हैं। और जो लाइव म्यूजिक है और जिस तरीके से हर एक प्रस्तुति यहाँ पे लेके आए हैं, और मेरा काम है कि उसको एक सूत्र में जोड़ना। और मुझे लगता है कि एक इससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में कोई नहीं कि इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में एक खूबसूरत प्रोग्राम करने का मौका मिला है मेरे को।